Good afternoon, student. In previous video, we had discussed about a poem. Okay, and this is very interesting poem. Now we are going to start our second point, our second chapter. Before start that chapter, I will tell you some information about that poem. Okay, I told some information about that poem, and that poem name is Don't Give Up. This is the very interesting poem, and I wrote I I had given some question with answer of that poem. Okay, and this is very important. This question is very important for your exam. So prepare that this question, okay, and write down this question in your notebook. Okay, we will start our chapter 1.2. Who's the greatest? You know about that greatest? That great is one type of adjective. Okay, so great, greater, greatest, this is the superlative form of superlative form. Okay, like that, small, smaller, smallest, tall, taller, tallest, important, more important, most important, beautiful, more beautiful, most beautiful. Okay, like that. Great means that great, greater, and greatest. Great is one type of adjective, and great is one type of positive form. Greater, comparative, and greatest, superlative form of that degree. Okay, let us start that chapter, and it's a very interesting chapter. Okay, so you heard a many story about Akbar and Birbal. Okay, so let us start. Emperor Akbar, or Akbar the Great, is known as one of the greatest rulers in the world, not just because he had a vast empire, a very strong army, untold wealth, but because he was a good human being. Okay, in this paragraph, some info means that in this paragraph, that paragraph told us about Akbar. Okay, and he is a very great person, greatest person in the world. Okay, and he follow some good instruction in his life. Okay, and there is mentioned some rules of that Akbar. Okay, so not just because he had a vast empire, there is a specialty of that Akbar: vast empire, very strong army, and untold wealth. Okay, and after that, there is one very important things, and that things is human being, and that person is very good person. ओके, मीन्स यहाँ पर अकबर जो है, अकबर बीरबल की कहानियाँ जो है हमने बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं। वो बहुत अच्छा आदमी था पूरे वर्ल्ड में। वो बहुत, उसके जो रूल्स है वो ग्रेटेस्ट थे, और उसका जो एम्पायर है, उसकी आर्मी है, उनकी जो अनटोल्ड वेल्थ है, इसके बावजूद भी ये तो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, पर इसके बावजूद भी ये जो अकबर था वो गुड ह्यूमन बीइंग मीन्स बहुत मीन्स जो काइंडनेस थी, वो काइंडनेस उसमें बहुत ज़्यादा थी। ही केयर फॉर हिज सब्जेक्ट, ही केयर ऑफ हिज सब्जेक्ट। यू नो अबाउट दैट सब्जेक्ट? He had a great respect for scholar, writer, poet, and artist belonging to different religions. Okay, that all people
belong to different religions, but that Akbar care all person, respect all person, like that. For example, scholars, writers, subject. Okay, मीन्स वहाँ पर जो अकबर था, अकबर क्या करता था कि उसके जो कुछ स्कॉलर थे, राइटर थे, पोएट थे, आर्टिस्ट थे, ओके, तो वहाँ पर उनकी वो रिस्पेक्ट करता था, अच्छी तरह रिस्पेक्ट करता था. ही वॉज अ पैट्रॉन ऑफ आर्ट एंड कल्चर्स. ओके, एंड दिस वेरी गुड थिंग्स to any king. Okay, any king. So many the 9 gems or Navratna in his court were famous. Many people believe that of these 9 gems, Birbal was the closest to the emperor's heart. Okay, so there is given some information about that Akbar. Okay, there is 9 person, and that 9 person is very clever. Okay, and that 9 gems or Navratna is called, are called. Okay, means वहाँ पर वो जो अकबर था, वो अकबर के दरबार में जो 9 जेम्स थे उनको नवरत्न भी कहा जाता था, और वो बहुत फेमस थे. जो बहुत पीपल मीन्स मेनी पीपल जो ऐसे थे जो उस 9 जेम्स पर बिलीव रखते थे. ओके, पर उसमें से बिरबल इज द क्लोजेस्ट टू द एम्परर हार्ट. ओके, मीन्स वहाँ पर जो बिरबल नामक व्यक्ति था वो एम्परर से बहुत नज़दीक था. ओके, अकबर लव्ड टू पोज interesting question or problems in his court, and Birbal never failed to come up with an equally interesting answer. Okay, so this Akbar is very clever. Okay, that means Akbar is very clever. He is very good person, and he love means Akbar love to pose interesting question or problem in his court. Okay, means वहाँ पर जो अकबर था उसको क्या इंटरेस्टिंग, किसमें इंटरेस्ट था? पोज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मीन्स कुछ क्वेश्चन पूछने से, अच्छे जो क्वेश्चन पूछना, उसके सवाल क्या है क्या नहीं, इसके पर डिस्कशन करना, ये बहुत उसे अच्छा लगता था. बिरबल नेवर फेल टू कम अप विथ ऑन इक्वली इंटरेस्टिंग आंसर. और बिरबल भी उससे इंटरेस्टिंग जो आंसर है वो आंसर बताता था, अच्छी तरह बताता. ही इज़ वेरी क्लेवर, दैट्स वाई बिरबल इज वेरी क्लेवर. ओके, दैट्स वाई ही नेवर फेल. मीन्स वो बहुत क्लेवर था, इसलिए वो कभी भी उसके जो आंसर है वो आंसर देने में फेल नहीं होता था. ओके, एंड फेल टू कम अप विथ ऑन इक्वली इंटरेस्टिंग आंसर. और उसके जो आंसर है, आंसर देने में भी जो बिरबल था उसको बहुत इसमें इंटरेस्ट था. ओके, नेक्स्ट paragraph. We don't know whether all the Akbar and Birbal stories that we hear today have any basis in history. They have been handed down over generation mainly by words of mouth. Here are two of them. Okay, there are many interesting story that one person means there are many interesting story about Akbar and Birbal, and one generation told to another generation. Okay, we heard all story about Akbar and Birbal. Okay, and these stories are very interesting story, and
we are going to start, we are going to learn that two of them. मीन्स वहाँ पर हमने अभी तक बहुत सारी जो स्टोरी है अकबर बीरबल के बारे में वो हमने अभी तक बहुत सुनी है। उसमें से दो स्टोरी हम अब देखने जा रहे हैं। ओके, पर ये जो स्टोरी है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जा रही है बाय वर्ड्स ऑफ माउथ। इसका मतलब क्या होता है? बाय स्पीच। हम रिटर्न में है क्या मीन्स बाय स्पीच मीन्स एक दूसरे को बता रहा है इसी तरह। ओके, फर्स्ट स्टोरी इज one day the emperor entered the court with a very serious expression on his face. As soon as he was seated, he said, I have a question for all of you. Okay, so one day emperor entered in his court with a very serious expression on face. Okay, and this is a very difficult means this is very angry expression on that Akbar face. Okay, and he entered the court and he was seated. He told all person, I have one question for all of you. मीन्स वहाँ पर जो एम्परर था, एम्परर कोर्ट में आ गया और उसके जो फेस का जो एक्सप्रेशन था वो कैसा था? बहुत सीरियस था और अपनी जगह पर वो बैठ गया और उसके बाद उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि उसको जो ऑल पीपल थे उनको एक क्वेश्चन पूछा, व्हाट शुड बी द पनिशमेंट फॉर समवन हु पुल्स माय मस्टैच। मस्टैच का मतलब क्या होता है? मूछे। तो उन ऐसा एक आदमी है जिसने मेरी मूछे जो है पुल किए है। ओके, तो उसको क्या सजा देनी चाहिए? ओके, तो नेक्स्ट, द कोर्ट वाज स्टर्न। ओके, स्टर्न का मतलब क्या होता है? शॉक। द कोर्ट वाज शॉक। ओके, देयर इज वेरी dangerous situation, a dangerous difficult situation in his court. Okay, that's why all people was stern. Pull the emperor's mustache, it was unheard of. Okay, means यहाँ पर जो राजा था कि अकबर था उसकी जो मस्टैच है वो किसी ने पुल्स की थी, इसलिए राजा यहाँ पर आया था। तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत ही कैसा बन गया? स्टर्न बन गया, शॉक्ड बन गया। फ्लॉग हिम, give him 50 lashes of the whip, exclaimed one nobleman. There is many noblemen, and that nobleman sat in his court, means that Akbar's court, and one nobleman told, flag him, give him 50 lashes of the whip, means वहाँ पर उसको मारना चाहिए। 50 लैसेस ऑफ द व्हीप, जो मारने का जो व्हीप होता है उसे 50 जो का फ्लैग है उसे मारना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। दैट्स नॉट इनफ, पुट हिम इन जेल विदाउट फूड एंड वाटर, सेड अनदर। दैट अनदर नोबलमैन told this is not enough. Okay, so put him in jail without food and water. Don't give water and food to that person because this is a criminal. Okay. Next page. Next page. Whip him, beat him, hang him, cut off his offending hands. Okay, or the agitated courtiers began to cry out. Only Birbal was silent. He was even smiling a little. Okay, वहाँ पर हर एक कोई मिस एक ने कहा whip him, beat him, उसे मारना चाहिए। ओके, उसे हैंग करना चाहिए। कट ऑफ हिज ऑफेंडिंग हैंड्स, उसके जो क्रिमिनल हैंड्स है उसे कट करना चाहिए, उसको मारना चाहिए, उसे लटकना चाहिए, ऐसा लटकवाना चाहिए, ऐसा जो लोग सभी बोल रहे थे।
ओके, सो वहाँ पर ओनली जो बीरबल था, बीरबल वॉज साइलेंट, मीन्स वहाँ पर जो बीरबल था वो कुछ कह रहा है क्या? नहीं, ही वॉज एवन स्माइलिंग अ लिटल, और वो क्या कर रहा है? थोड़ी मीन्स लिटल स्माइलिंग कर रहा है। व्हाट डू यू से बीरबल, व्हाट इज योर ओपिनियन? दैट वन सेड टू दैट बीरबल, व्हाट डू यू से मीन्स आपका क्या आपको क्या कहना है बीरबल? व्हाट इज योर ओपिनियन, आपका ओपिनियन क्या है? इन माई ओपिनियन, ओ गिवर ऑफ पीस टू द वर्ल्ड द offended should be given his favorite sweet meat. Okay, so offense, that Birbal gave a different type of answer. Then means that many noblemen told his their opinion, but his that बीरबल ओपिनियन इज वेरी डिफरेंट, मीन्स वहाँ पर कुछ डिफरेंट ऐसा ओपिनियन बीरबल ने दिया है, उसे एक अच्छा स्वीट मीट देना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। ओके, सो नेक्स्ट, राजा बीरबल, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, गिव स्वीट मीट फॉर सच ए ग्रेव ऑफेंस, ऑफेंस मीन्स क्राइम। तो वहाँ पर उन्होंने कहा, राजा बीरबल, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, आप तुम्हारे माइंड के मीन्स माइंड से काम कर रहे हो, गिव स्वीट मीट फॉर सच ए ग्रेव ऑफेंस, ये जो क्राइम है और क्राइम के लिए कुछ स्वीट देना है, ये तो बहुत बुरी बात है। द courtiers began to say, Birbal smiled. The courtiers began to say, Birbal smiled and offered an explanation. Yes, who would be so bold as to pull the emperor's mustache? Only his own grandson. मीन्स वहाँ पर जो बीरबल था, बीरबल को ही पता था कि इसका सही आंसर क्या है, और बीरबल ने बताया कि उसको कुछ अच्छा खिलाना चाहिए। ओके, तो मीन्स उनको पता था कि उन्होंने बताया, एक्सप्लेनेशन बताया कि उसको क्यों देना चाहिए, क्योंकि उसकी जो मस्टक है वो दूसरे किसी ने मीन्स पुल की थी क्या? नहीं, जो अकबर का जो ग्रैंड सन है उसी ने ही जो स्मॉल था, बहुत लिटिल था, उसी ने पुल किया था, इसलिए ऐसा पूरा एक्सप्लेनेशन बीरबल ने दिया। ओके, व्हेन अकबर हर्ड दिस he burst out laughing because that is exactly what had happened in the morning. In morning season, means that in this condition that king laughed loudly. Okay, why? Because in morning season that grandson pulls Akbar's mustache. मीन्स वहाँ पर क्या हुआ था? एग्जैक्टली जो अकबर बीरबल ने बताया उसी तरह सुबह सुबह वहाँ पर मिस हुआ था, इसलिए जो अकबर है वो बहुत जोर जोर से हंसने लगा। On another occasion, Akbar was, this is first story and this is second story. Okay, on another occasion, Akbar was relaxing with some of his courtiers. A few of them thought his was a good opportunity to shower praise on the emperor and get some favors from him. They began to compete with each other in praising Akbar. Okay, that shower praise. Okay, that there is one difficult word, shower praise. Shower praise means to give a lot of praise, to give abundant praise. Okay, so an offense means crime. Offense means crime. मीन्स वहाँ पर यहाँ पर सेकंड स्टोरी स्टार्ट हो रही है। ऐसे ही जो मिस देयर इज मीन्स दैट अकबर सैट इन हिज कोर्ट, ओके, in his court with his courtiers, okay, and he is very good, means that a few of them thought
of Akbar sat relaxing in his court, and that time that other people thought that Akbar is very means feel very happy. That's why he is very good opportunity to shower praise according to that nobleman. मीन्स वहाँ पर कुछ ऐसे क्वार्टर्स थे, तो उन्होंने यहाँ पर राजा आया था, अपने कोर्ट में बैठा, रिलैक्सिंग बैठा, तो वहाँ पर उस जो क्वार्टर थे उनको ऐसा लगा कि ये बहुत गुड अपॉर्चुनिटी है राजा को खुश करने के लिए और उसको हमारे फेवर में करने के लिए. दे बिगैन टू कंपेट विथ ईच अदर इन प्रेसिंग अकबर. मीन्स उनको लगा कि राजा को हम राजा की अच्छी तरह हमने प्रेस की, स्तुति की, तो क्या होगा, हमारे फेवर में आ जाएगा. ओके, हमें अच्छा कहेगा. ओके, इसीलिए उनको मीन्स बाकी के जो लोग हैं उनको ऐसा लगा, यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग. दैट वन टोल्ड यू आर ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग. मीन्स आप क्या है, बहुत बड़े किंग्स है. यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग्स और एम्परर्स दैट एवर लिव्ड ऑन द अर्थ. मीन्स एक ने दूसरे ने कहा कि आप इतने महान हो, एक महान राजा हो, और एम्परर्स दैट एवर लिव्ड ऑन द अर्थ, जो पृथ्वी पर रहता है वो बहुत, मीन्स वो आप इतने अच्छे हो, बहुत महान हो, जो कि अर्थ पर रहते हो. ऐसा कुछ उन्होंने राजा के बारे में बताया. नेक्स्ट पेज नंबर 4. ओके, नेक्स्ट, यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द पीपल इन हेवन और अर्थ. यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द पीपल इन हेवन और अर्थ. मीन्स एक जो नोबलमैन था, कोर्टर्स था, उन्होंने बताया कि आप जो अर्थ है, जो हेवन है, उससे सबसे बड़ा जो किंग है वो आप हो, सबसे ग्रेट पर्सन आप हो, ऐसा उन्होंने कहा. यू आर एज ग्रेट एज गॉड एलमाइटी. मीन्स पावरफुल. मीन्स वहाँ पर एलमाइटी का मतलब क्या होता है, सबसे पावरफुल आदमी. तो एक ने कहा जिस तरह गॉड की तरह आप क्या हो, पावरफुल हो. यू आर ग्रेटर दैन द गॉड एलमाइटी. और दूसरे एक ने कहा दैट अनदर पीपल टोल्ड यू आर ग्रेटर दैन गॉड. ओके, मीन्स आप गॉड से भी ज़्यादा पावरफुल हो, ऐसा उसने कहा. नेक्स्ट, नाउ अकबर वॉज नो फूल. He did not care for false praise. He stopped the courtiers and asked, "Do you all believe so?" In this condition, that paragraph told Akbar is very clever person. If anyone told a false information or incorrect information or incorrect praise, that time he recognized that condition and he told some that person. Okay, like that. मीन्स वहाँ पर जो अकबर था वो फूल्स था क्या, नहीं. ही डिड नॉट केयर फॉर फॉल्स प्रेज. मीन्स वो जो लोग कुछ भी कहते थे उसका वो केयर करता क्या, नहीं. सपोज एक ऐसा आदमी है जो पावरफुल नहीं है, तो कोई एक ऐसा तीसरा आदमी आता है तो वो कहता है कि आप बहुत पावरफुल हो, आप बहुत काइंड हो. ओके, जो अकबर डिड नॉट केयर फॉर फॉल्स प्रेस, जो फॉल्स प्रेस था उसकी केयर नहीं करता था. कौन, अकबर. नेक्स्ट, ही स्टॉप्ड द कोर्टर्स एंड आस्क्ड, डू यू ऑल बिलीव सो. मीन्स वहाँ पर आपको बिलीव है क्या. वहाँ पर ही स्टॉप्ड द कोर्टर्स को स्टॉप किया और उन्होंने क्या कहा, आपको बिलीव है क्या. यस, दे आंसर इन वन वॉइस. ओके, दैट all courtiers said to the Akbar, yes, definitely. They answer in one voice. All right, okay. Then prove it to me. Tell me at least one thing that I can do, but God Almighty will not be able to do. Otherwise, you will
all inquire or royal displeasure. Inquire का मतलब क्या होता है? Make me angry. Incur और royal means our displeasure. Displeasure का मतलब क्या होता है? More me angry. You have till tomorrow morning to prove it. Okay, there is very difficult condition that Akbar told to that all courtiers. Um, okay, no problem. Prove it to me. Okay, prove it to me. Tell me at least one things I can do. So sorry, I can do, but gods cannot do. Okay, like that. Okay, otherwise incur displeasure. Okay, you हैव टिल टुमारो मॉर्निंग टू प्रूव इट. ओके, मीन्स वहाँ पर अकबर ने कहा ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम. तो आपको क्या करना है कि आपको प्रूव करना है कि मैं सही में बहुत ग्रेट आदमी हूँ, सही में ग्रेट किंग हो. तो ऐसा कौन सी चीज़ है जो मैंने की है, मैं कर सकता हूँ पर गॉड नहीं कर सकता. ओके, ऐसी चीज़ एक बताओ और उसे प्रूव करो. नेक्स्ट, Akbar then left the place without another look at the quarters. They were in a proper fix. They thought and thought but couldn't think of any such thing in the end. They went to Birbal. When Birbal heard their story, he told them not to worry. Okay, now that all quarters are very means falls in critical condition. Okay, and he thought again and again. Okay, but they couldn't think on that point. Okay, so that quarters went to that Birbal, and that one quarters told this story to that Birbal. Okay, so that story heard about that Akbar. Birbal heard the story and he told them not to worry. मीन्स वहाँ पर क्या हुआ कि जो पूरी कहानी है वो पूरी कहानी जो क्वार्टर्स है उन्होंने बिरबल को बताई, और बिरबल ने वो अच्छी तरह सुनी, और उसको सुनने के बाद वो क्वार्टर्स को कहा ओके डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, मीन्स आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं. द नेक्स्ट मॉर्निंग द कोर्ट वॉज फुल. एवरीवन वॉज क्यूरियस टू सी व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट. ओके, मीन्स वहाँ पर जो एवरीवन था, सब कुछ जो पीपल थे वो क्या कर रहे थे, क्यूरियस टू सी व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट. मीन्स अभी क्या होने वाला है ये सुनने के लिए वो ईगर हो गए थे. वेल said the emperor, have you found a good answer my question, or are you ready to leave the court forever? मीन्स वहाँ पर एम्पर ने कहा कि आपको आंसर मिल गया क्या, वो ओके मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया है तो बताओ, हैव यू फाउंड, नहीं तो आपको जो ये कोर्ट है वो छोड़ के जाना पड़ेगा. तैयार मीन्स रेडी हो जाओ. जस्ट देन बिरबल स्टेप फॉरवर्ड एंड बॉट low. Please don't be angry with those who think you are the greatest. There is certainly at least one thing that you can do, but the God Almighty cannot. Okay, means that in this condition there means that Birbal came in his court and told to Akbar, don't be angry with those who think you are the greatest. Okay, there is one things you can do but gods cannot do. मीन्स वहाँ पर जो बिरबल था वो बिरबल कोर्ट में आ गया और वो बोला कि आपको एंग्री होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आप कर सकते हैं पर गॉड नहीं कर सकते. Akbar looked at Birbal thoughtfully, and what is that one thing? Okay, means अकबर ने बिरबल की तरफ thoughtfully देखा, and what is that one things means वहाँ पर वो कौन सी थिंग्स है उसके बारे में बोला.
When you want to punish someone, you can banish that person, you can throw him out of your kingdom. But God's kingdom extends everywhere. The Almighty cannot banish anyone from His kingdom. Oh, this is the very, very great things, and this is very great thought according to that Birbal. Birbal told one thing that Akbar do properly, but God cannot do properly. Okay, so this thing is suppose just consider there is one criminal, and that Akbar banished on that person from his kingdom, but God cannot banish from his kingdom, because God's kingdom extend everywhere. इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी को बैनिश करते हो, ओके, बैनिश करते हो, बैनिश का मतलब क्या होता है, ऑर्डर मैन टू लीव प्लेस, मीन्स वहाँ पर उसकी जो प्लेस है वो छोड़ने के लिए वो कह सकते हैं, पर जो गॉड्स है वो नहीं कर सकते, क्योंकि जो गॉड्स किंगडम्स है एक्सटेंड एवरीवेयर, मीन्स वहाँ पर पूरे का पूरा जो प्लेस है वो गॉड्स के है, तो उसकी जगह से वो नहीं कह सकते कि आप यहाँ से बैन हो जाओ, मीन्स दैट ऑर्डर अ मैन टू लीव अ प्लेस, मीन्स अपनी जगह छोड़ने के लिए वो नहीं कर सकते। तो एक चीज़ ऐसी है कि जो ये कह सकता है, अकबर कह सकता है, पर गॉड्स नहीं कर सकते। अकबर फेस वॉज लिट अप विथ अ स्माइल दैट वॉज अ वेरी क्लेवर बिरबल while showing how I have an advantage. You have also shown that God is greater, I believe. Okay, मीन्स वहाँ पर क्या हुआ कि जब ये स्टोरी अकबर ने सुनी तो उसे लगा कि यस दिस इज करेक्ट। ओके, यू हैव ऑल्सो शोन दैट गॉड इज ग्रेटर, मीन्स वहाँ पर आपने प्रूव किया गॉड इज ग्रेटर, आई बिलीव यू, इसलिए मैं आप पर बिलीव रखता हूँ। अकबर वॉज सो प्लेज्ड विद दिस आंसर एंड दैट ही फॉरगिव द कोर्टर्स फॉर देयर स्टूपिडिटी। ओके, देयर इज वन hard word, hesitate means disturb. Okay, so Akbar was so pleased means happy. Akbar was so pleased with the answer that he forgave the courtiers for their stupidity. इसका मतलब क्या होता है, उसकी जो कॉर्टर की जो स्टूपिडिटी थी, मीन्स अकबर ने सबसे पहले ये जो आंसर सुना तो उससे वो बहुत हैप्पी हो गए, प्लेस्ड विद द आंसर। ओके, एंड दैट ही फॉरगिव का मतलब क्या होता है, क्षमा करना। फॉरगिव द कॉर्टर्स फॉर देयर स्टूपिडिटी, मीन्स वो जो कॉर्टर्स है उन्होंने राजा को मीन्स अकबर को कहा था कि आप ग्रेटेस्ट हो, महान हो, ऐसे कुछ कहा था। तो ये जो स्टूपिडिटी है मीन्स गॉड से भी ज़्यादा आप अच्छे हो, ये जो रियलिटी है उसमें रियलिटी थी क्या, नहीं, ये जो इसमें रियलिटी नहीं थी, ये फॉल्स था। ऐसा तो अकबर को भी पता था, पर वो कॉर्टर्स कह रहे थे, और इसकी जो मूर्खता थी, स्टूपिडिटी थी, उस पर ये जो अकबर था उन्होंने फॉरगिव किया, क्षमा की उनको। ओके, ये स्टोरी सुनकर, ओके, क्योंकि वो बहुत हैप्पी हो चुका था वो स्टोरी सुनकर कि जो गॉड्स कर सकता है, मीन्स अकबर कर सकता है पर गॉड्स नहीं कर सकता। कौन सी चीज़ है वो, जो अकबर ऐसा व्यक्ति है कि जो किसी ने उसके किंगडम में कुछ ऐसा किया तो वो अपने किंगडम से उसे बाहर फेंक सकता था, उसके जगह से बाहर फेंक सकता था, पर गॉड कर सकता है क्या ऐसा नहीं, क्योंकि हर एक जगह गॉड की है, तो वहाँ पर से तो वो उसे बाहर नहीं भेज सकता। ये चीज़ है कि जो अकबर कर सकता है पर गॉड्स नहीं कर सकता, और ये बिरबल ने बताई कोर्ट में, तो वो राजा बहुत हैप्पी हो गया। तो उसने ये आंसर सुनकर क्या कर दिया कि जो क्वार्टर थे, स्टूपिडिटी थी उनकी, इसलिए मीन्स उनमें उनको क्या किया, फॉरगिव किया, क्षमा किया। ओके, this is our very interesting story, and we will discuss about that question with answer in next video, means tomorrow. Okay.